welcome back to my channel. So how are you all? And as you know, right now we're in Hunza. So today we're going to be exploring 3 places. So 2 of them are actually forts, Altad and Belted Fort. So first of all, we're going to go to the Altad Fort, and right now we're at the parking area, and as you can see we have parked our car. And you must be thinking, where am I going? I was just going to see the apples because they were like so tasty and I wanted to eat them, but we were like not allowed to pick them out. So yeah, that was kind of sad. And to get there you actually have to go through some shops. You have to walk. Yeah, basically you have to walk because it's like a little bit far from where you have parked your car, I mean from the parking lot. But literally these shops were so nice. They were like coffee shops, they were like jewelry stuff that you can buy, and I really wanted to go inside, but you know, they were like closed. And we also had to go reach to the Altad Fort, so we were just hurrying out. And on the way we got a little bit thirsty, so we thought, why shouldn't we go and grab some drinks? So right now we are at the shop and we just bought like water and juice. So we have finally reached to the Altad Fort's counter, and for children it was free. I mean for Pre and Hazel it was free, and for me, Mama and Papa, they charged the money, and for each person it's 600 rupees. So yeah, and we saw like so many apricot trees like everywhere. When we came to Hunza there were like so many trees, and we were like truly new here, so we didn't know where to go. So there was like, you know, people who were sitting there, so we just asked them, and they were like, you need to wait a little bit for the guide to get free because they might be, you know, guiding the other people. So when they get free they will come right away to, you know, give you the historical knowledge and everything. And the view was like so amazing, and I love it that they made this waiting area at this point, because just look at the view. It's like so pretty. It feels like you're in heaven. So yeah, it like Hunza is the piece of heaven, and it's nationally given to Hunza because it's just because of its beauty and because of its people. And there were also like grape trees, and I also saw these and I was like so amazed because just look at them, they're like super tiny. And now you're not gonna hear my voice, you're gonna hear the guide's voice. I hope you enjoy. We enjoyed a lot. मोहम्मद कहते हैं। मैं आज आपका लोकल टूर गाइड हूँ। आपको फोर्ट के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप तमाम को बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद। वादी हुंजा में बिल्कुल अल्तद वैली के अंदर, जैसे कि इस वक्त अल्तद फोर्ट के सामने खड़े हैं। इसको बनाने की क्या वजह बनी, क्या रीज़न था, क्या वजूहत थी जो फोर्ट तामीर हुआ। बेसिकली वजूहत तो बहुत सारी थी, लेकिन जो सबसे अहम वजह थी वो था सेल्फ प्रोटेक्शन। उस ज़माने में हमारा एक शहज़ादा था जिसका नाम था शाह सुल्तान। उसकी शादी हुई शी खातून नाम शहज़ादी मलका से, जिनका ताल्लुक़ था शिगर स्कर्दू बल्तिस्तान से। जब वो बारातियों का ग्रुप इधर आया, बारातियों का ग्रुप, तो उन्होंने देखा कि उनकी साहबजादी के रहने के लिए वो खातिर खा कोई महल नुमा बंगला या फोर्ट नुमा महल, ये सब कुछ भी कह सकते नहीं था, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी शान निशान तरीके से बची कुछ ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए इस चीज़ की कमी को शिद्दत से महसूस करते हुए ये फोर्ट तामीर किया। अब वजह ये बनती है जनाब, सवाल यहाँ उठता है कि बनाना ही था तो नीचे बना लेते, ऊपर क्यों बना? जैसे हमको पहले ही बता दिया, सेल्फ प्रोटेक्शन। दुश्मनियाँ मीन्स लड़ाई झगड़े फसादात उस ज़माने में बहुत थे। खाना जंगी का माहौल था नगर स्टेट हुंजा स्टेट के दरमियान। उनको ख़तरा था कि नीचे बने तो रात रात को हमला करके किंग या किंग को ख़त्म ना कर दे या फोर्ट को, किले को फतह ना कर दे। इसलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखकर उन्होंने हाइट को चूज़ किया, ना कि मैदान को। ये 300-350 मीटर ऊपर या 1000 फीट अप्रोक्स दरिया हुंजा की सतह से ऊपर है ये फोर्ट किला। आप पीछे एक तख्ती लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज अवार्ड 2011 में इस फोर्ट को उस किताब से भी नवाजा है, चूँकि उनके कुछ पैरामीटर्स और पैमाने होते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है यूनेस्को, वहाँ के कल्चर हेरिटेज अवार्ड से उनको नवाजते हैं। उन इमारतों को जब वो पैमाने पूरी हो जाते हैं, क्रॉस चेक हो जाते हैं, इसके बाद 1100 साल बाद में जिस तरह इसको प्रिजर्व रखा है, इसी बिना पर इसको बेस्ट फोर्ट की किताब से नवाजा। अंदर जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे अंदर के दरवाज़ों की चौकटें बहुत नैरो शॉर्ट हैं, और जो तो खैर बेपना हो सकती है रीज़न्स,
लेकिन जो मेन जो वजूहत जो बताती है रीज़न, उनमें से 3 बहुत अहम रीज़न या वजह बताई जाती है जनाब। सबसे पहली जो रीज़न वजह बताते हैं वो है सेल्फ प्रोटेक्शन। जब दुश्मन आपका हमलावर आपको हमला करने आएगा, वो गलत फहमी में अपना चौखट पे सर दे मारेगा, वो समझ के कि इसकी चौखट नॉर्मल जो बड़ी साइज़ की है, उसी गलत फहमी का एडवांटेज हमें मिलेगा। या तो इधर वो अपनी जान खुद नहीं बैठेगा या तो बेहोश होकर गिरेगा। बेहोशी की सूरत में हम उसकी तैयार कमाल कैदी बना देंगे या जान से मार के अपनी जान को महफूज करेंगे। दूसरा जो रीज़न बताते थे वजह जनाब, वो बताते थे ह्यूमिलिटी, आजी, इंकसारी, डाउन टू अर्थ। उस ज़माने के अंदर जो बादशाह की जो फैमिली के जो बुज़ुर्ग होते थे, ओल्डर पीपल होते थे, बुज़ुर्ग लोग, उनके पेरेंट्स, वो दरवाजे के सामने अमूमन बैठते थे। उनके सामने सीधा मुँह चले जाना, मुँह उठा के जाना, आ जाना, उसको बहुत गलत समझा जाता था। उसको बैड मैनर्स या बैड बिहेवियर कहते थे। उसको उस ज़ुमरे में लाते थे, बद इखलाकी के ज़ुमरे में लाते थे, इसलिए चौखटें नैरो शॉर्ट बने। तीसरी अहम वजह जो बताते जनाब, जो चौखटें दरवाजे छोटी रखी गई अंदर नैरो शॉर्ट्स का रीज़न बताते क्लाइमेट कंट्रोल। बड़े बुजुर्ग बता के गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता था रूम, और सर्दियों बहुत ज़्यादा सर्द नहीं रहता था, इसलिए उसको मुतवाज़न दरमियाना बराबर रखने के लिए ये चौखटें दरवाज़ों की छोटी नैरो बनाई है। अब हम अंदर जाएंगे, जैसा आपको बता चुका दरवाज़ों के बारे में। तो अपना स्टेप्स का ख्याल रखिएगा, और अपने जब दरवाजे खुले तो आपके साथ बच्चे भी हैं, आप खास डबल एहतियात कीजिएगा। सर थोड़ा झुका के आराम से मुझे फॉलो करें। हम रूम में जाएंगे 1 बाय 1 और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होगा। अब हम इस रूम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जनाब। इसको इंट्रोडक्टरी रूम, इस्तकबालिया फिर रिसेप्शन कहते थे सर। इस जगह पर किंग अपने चंद वजीर और अपनी सिक्योरिटी एहलकार के हमरा, जो हमायदीन जो चाइना से ताजिर बरदरी आती थी, जो उसी टाइप के लोग, उनको वेलकम में रिसीव करता रहा कई 100 साल तक। यहाँ पे सिक्योरिटी का रहने का रीज़न ये था, वजह सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि कोई जो बंदा आ रहा है मिलने के बहाने कहीं वो किंग को ख़त्म ना कर दे, जान से ना मार दे, क्योंकि अंदर के बागी ज़्यादा थे बनिस्बत बाहर के। अंदर की मीर जाफ़र या सादी को पहचाना या सादी को पहचाना मुश्किल था बनिस्बत बाहर के लोगों के, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी को हमेशा साथ रखा। ये जो आपको दिख रहे 4, इस्लाम की उम्र 400 साल गुजर रही है। इससे पहले यहाँ पे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म था, चूँकि जब यहाँ पे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म उरूज पर था, उस ज़माने में शराब पीना, पिलाना या बेचना इस वक्त मजाक है, बुरी बात नहीं समझी जाती रही। अच्छा जनाब, ये तो वाइन सेल हो गया। इसका कहते हैं हजम में वॉल्यूम साइज 4 से 5 गुना बड़ा था। चूँकि इस्लाम मज़हब आ गया, इसको प्रिजर्व भी रखना था, इसलिए उसको श्रिंक को स्क्वीज़ करके इतनी जगह महदूद रखा, ताकि आप जैसे सियाह जो अंदर मुल्क से आते टूरिस्ट या बैरून मुल्क से सियाह टूरिस्ट आते उनको बता सकें कि माजी में इसके अंदर क्या क्या होता रहा। ये जो आपको दीवार दिख रही बीच में खड़ी कबर है, ये सेंटर में दिख रही रूम के बीच में ये खड़ी कबर है। यहाँ पर जिंदा चुनवाए बड़े भाई ने छोटे भाई इक़्तिदार के लिए, सीट के लिए, क्राउन के लिए, थ्रोन पर बैठने के लिए। एक बादशाह के 2 साहबजादे थे, इधर खड़ा किया और यहाँ पर चुनवा दिया। गोरे हैं, उनको भी जैसे आपको बता रहा हूँ, उनको समझाया, उन्होंने आके क्रॉस एग्जामिन किया, मशीन मारी, रेज मारी, मशीन के थ्रू चेक किया तो ह्यूमन स्कल पाया। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर किसी को दफनाया किस ज़माने में। ये जो आपको दिख रहा है जनाब, इसको हम लोग कहते हैं गंदम रखने की जगह। यहाँ पर गेहूँ और गंदम स्टोर करते थे। ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इसको इमरजेंसी एग्जिट के तौर पे, हंगामी इखराज के तौर पे यूज़ करते रहे माजी के अंदर। अब आ जाएँ ऊपर हमारे साथ, सर बचा के मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ उस रूम में क्या क्या होता है। सर बचाइएगा, छोटे बच्चे का। खास इस रूम को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ हुंजा की हिस्ट्री। हुंजा जो बेसिकली वर्ड है, करेक्ट वर्ड नहीं है, हुन जो राइट वर्ड था। हुन वो कौम की जो रियासतों कहते थे। चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे एक येलो रिवर नामी जगह है, जहाँ से हमारे आबा अजदाद हज़ारों साल पहले क़ब्ल मसीह इधर आके आबाद हुई। ये फोर्ट तो बहुत बाद में बना, हज़ारों साल पहले। ऑलमोस्ट इसकी तहजीब मोहनजोदड़ो और खंडहार तहजीब ऑलमोस्ट एक ही जितनी पुरानी है। यहाँ पर आके आबाद, उनको ख़तरा था तातारियों से। हलाकू खान, चंगेज़ खान का नाम सुना होगा आपने, मंगोलिया, उनसे ख़तरा था कि उस जैसे लोग
वहाँ से गुजर के उनको कहीं ख़त्म ना कर दे, उनकी जान और माल को नुकसान। मैंने देखा कि पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही थे, कोई खेत खलियान कुछ भी नहीं था। आपको पता है किसी भी जगह पर रहना तो जब आपको खेती बाड़ी होगी तो वहाँ पर फार्मिंग एग्रीकल्चर कुछ करके वहाँ कुछ उगा के खा सकते हैं, वरना आप क्या खाएंगे। उन्होंने पहाड़ों से पहले पॉटल चैनल्स निकाले, बागात को आबाद किया, नीचे खेत खलियानों को आबाद किया। जो बड़े पत्थर वो कैरी नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी बागात की बाउंड्रीज का तयन किया कि ये मेरी, ये तेरी, ये फलाने ढिमकाने की बाउंड्री। और जो दरमियानी छोटे से पत्थर से ला सकते थे, उन्हें कच्चे बच्चे मकान बने, अपनी शादियाँ की, उसमें उस तरह आबादकारियाँ फैली और हुनजो की आबादी फैली। हुन कौम की जो वहाँ से येलो रिवर से चाइना मंगोलिया बॉर्डर से जो रियासत को कहते हैं वांगजू। अभी उनका पड़ा कैसा नाम, बेसिकली बोरी में 18वीं सदी में उन्होंने यहाँ पे बायफोर्स जब 5 से 6 7 अटैक किए, एक के बाद दीगर सब में नाकाम हुए बायफोर्स, तो उन्हें ठान ली, जिद में ठान ली कि हम यहाँ पे कुछ भी करके आना है, क्योंकि कराफुल है, सिल्क ट्रेड के लिए बहुत आइडियल लोकेशन है। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी करके आना है, यहाँ पर इस पे भारत है। अंदर घुसे, हमारे 10 सीज टावर से डेमोलिश कर दिए मसमार, और हमारी 25 फीट की 25 मीटर की अंदर सॉरी आगे पीछे कच्चा मोहल्ला आपको दिखाऊँ, कच्चे मकान बने मोहल्ले में, खन कहते हैं, उसके इर्द गिर्द 25 मीटर की वॉल थी, जैसे दीवारें खीन होती है पूरे, ताकि मोहल्ले को दुश्मन से बचाया जा सके। उन्होंने गुदर कहते हैं हुनज़ा ज़माने में वो भी गिरा दी, और उन्होंने हुनज़ा को बिगाड़ते ज़माने में हुनज़ा बना दिया। इल्ते बिलते 2 तिब्बतें मारते, इल्ते से बना तिब्बती अंते बिगड़ते बनाते, बिलते से बिगड़ते बना बलते। जो इल्ते से बना बलते उसका मतलब नीचे के होते हैं, जो बिलते से बना बलते उसका मतलब ऊपर के होते हैं। ये ज़मीनी एतबार से ये गांव नीचे, बिलते जो बना बलते बाद में वो ऊपर है, इसलिए उसको ऊपर, इसको नीचे, इसलिए उसको बलते, इसको अलतित का। अब इस रूम पर आते हैं। ये जो रूम है इसको पार्लियामेंट हाउस, ऐवान खास, जरगा या पंचायत घर, हमारे हुनज़ा ज़माने में उसको अस्तम का घर बोलते हैं, जहाँ पे फैसले होते थे, ज़मीनों के मसले सुने जाते थे। 12 कबीले थे, टॉप उनके 12 लोग आते थे, हर कबीले से बंदा आता था। यहाँ पे खाना पकता लकड़ियों के मतलब चिमनी से धुआं बाहर, इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन। ये लोकल मिट्टी का पॉट, इसको बलोस कहते हैं, नोट बलोस। खाना और चाय की किन की नजरों के सामने हमेशा बनता था, उजल नहीं, वो खतरा होता था कोई नमक के बहाने फूड पे देखे कि वो खतरा ना कर दे। ये जो आपको दिख रहा है जनाब, इतना बड़ा बक्सा ब्लैक बॉक्स को सबूर बोलता हूँ ज़मीन में। उनसा में 3 रीजन और 3 डिफरेंट लैंग्वेज। लोअर में शिना, सेंटर में जहाँ खड़े इसमें बुशिस की, और अपर याताबाद लेकर नाम सुनो को, वहाँ से लेकर ताजिकिस्तान वखान बॉर्डर, खुंजराब चाइना बॉर्डर तक वही ज़बान बोलते। तो बुशिस की उसको हम में फसलें उगती थी ज़माने में, उसको मौसम गर्मा में उसको स्टोर करते ताकि मौसम सरमा तक चले और वो कम ना हो। आपने हिंदू मजहब के अंदर एक नाम सुना को स्वास्तिका, स्वास्तिका हिंदू स्वास्तिका कहते थे, या हिंदू मजहब हमारे बड़े बुजुर्ग को स्वास्तिका कहते थे। ये जो आपको गोल्ड या पिलर का दिख रहा है, ये भी तिब्बतन आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये जो आपको ये जो जगह को दी गई जनाब, इसको तेरे खाना या जेल खाना प्रिजन कहते हैं। यहाँ पर उनको डालते थे जो किंग की बातों को नहीं मानते थे, किंग के फैसलों को नहीं मानते थे, तो उनको यहाँ पे हाथ पे लकड़ियों की मदद से टुकने बांध के, हम हुनज़ा उसको हुनर दौलत बोलते हैं, नीचे फेंकते थे। 4 दिन बाद बगैर खाने पीने के ऊपर लाके पूछता अब तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुमने फैसला चेंज किया कि नहीं किया। डायरेक्ट माफी नहीं, उसको किंग के कहने पे किसी वजीर मिनिस्टर बिलेट क्लास में कुछ ऐसा काम करना पड़ता था तो जाके माफी मिलती थी, डायरेक्ट माफी नहीं मिलती। वो कहता था जनाब मैं सही हूँ, किंग गलत अभी भी, मैं तो सच जानू, 4 दिन क्या 4 जन्म रह सकता हूँ। उस सूरत में उसका बगैर कोई मजीद फर्दर 1 मिनट वेस्ट किए बगैर उसको आज़ाद कर देते थे, मतलब दुनिया से आज़ाद, टॉप से उसको हुनज़ा दरिया हुनज़ा में फेंक दिया जाता था जिंदगी भर के लिए, उसकी सजाए मौत। अच्छा जनाब, ये जो रूम में आप सारे आ चुके हैं, इस रूम को कहते हैं मटो फल फ्रूट सब्जी प्रिजर्व करने का तरीका। ये सिगम इसको जायदा बोलते हैं, यहाँ से रोशनी अंदर आती है, रोशनदान। सॉरी बेटा एक जगह बैठे रहो, डिस्टर्ब मत करो, अंकल गुस्सा करेंगे, रिस्की जगह बेटा, ये बहुत रिस्की जगह। ये देखिए जनाब, अब उस जमाने में सन डायल, इसका हाथ पकड़ लो बेटा, छुट्टी हाथ पकड़ो उसका। ये जो सन डायल, आप में से किस किसने सन डायल का नाम सुना होगा? सन डायल, सन डायल, सन डायल बेसिकली आजकल घड़ियाँ और रिवाज है घड़ियालों को, जमाने रिस्ट वॉच घड़ियालें नहीं होती थी, टाइम पे से देखते थे सूरज की किरणों की मदद से, उसको कहते हैं सन। सूरज की किरणें दीवार पे, उसके कुछ रिफ्लेक्शन शेड उस वुड पे, कोई यहाँ पे कुछ शेड शेडोज बनते थे कि लकड़ियों के भी एक डायल का काम करती थी। इसके एंगल्स बनते थे, एंगल्स के हिसाब से टाइम को जावियों के हिसाब से पैरों में डिवाइड किया था। एक दिन में 8 पैर होते, एक पैर 3 घंटे का होता, 3 8 24। तो जो माएँ होती थी, नानी दादी अम्माएँ बुजुर्ग खवातीन रॉयल फैमिली की, वो अपनी पोतियों से, बेटियों से और बहुओं से बोलती थी जनाब अब हमें लग रहा है सुबह का टाइम है, चाय बनाओ, दोपहर का टाइम है खाना बनाओ, शाम की चाय का टाइम होगी चाय बनाओ, या रात के खाने का टाइम है सफर या डिनर बनाओ। समझिए ये तो साल साल प्रैक्टिस थी। कभी क्लाउड हो, मौसम क्लियर ना हो, बिल्कुल अबर आलूद हो, बिल्कुल खुरदरा वेदर हो, तो उसमें क्या करते होंगे वो लोग, आइडिया
ये तो आपको बता रहा हूँ जो सूरज की किरणें आती हैं, अगर सूरज ही ना निकला मतलब बादल वाला जगह, तो क्या नहीं करते पता कुछ भी नहीं, अपना कॉमन सेंस यूज करते थे, बोलते थे बुजुर्ग खवातीन बोलती थी कि जनाब अब हमें लग रहा है सुबह का टाइम दिख रहा है, क्योंकि उनकी सालों साल प्रैक्टिस जो हो गई थी, तो अपने अंदाजे से अपने आइडिया से बताती थी वो लोग कॉमन सेंस यूज करते हुए बुजुर्ग खवातीन। अब हमें लग रहा है सुबह का टाइम हमें चाय बनाए, दोपहर का टाइम में खाना बनाए, शाम की चाय या रात का खाना बनाए, और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें तो पैरामीटर था नहीं यहाँ से ऊपर बादल में कुछ फेंक के नीचे लाए और देख सके। आ जाओ बेटा, दिन आता होगा चिराग तक रगड़ा जीना आगे पानी लेके आगे सब। बेसिकली उस जमाने में कुछ नहीं होता था, कहते हैं इंडियन मूवी का फेमस डायलॉग है, गुलामों को झुके हुए सब बादशाहों के महलों को पता बता देते हैं। तो ये पानी ताकि हॉट शावर, साउना शावर, ताकि जिस्म को ठंडा लगे। शावर ले लिया, जो लकड़ी की आग बची थी राख लकड़ियों का वो उसमें मशकीज़े में डाल दिया, दूसरी जो लकड़ियाँ जो दूसरा जो पानी का जो बचा वो पानी में डाल दिया, बचा वो ड्रेनेज वाला पिछाड़े सिस्टम, और यहाँ से एग्जिट कर दिया उसको। ये जो आपको दिख रहा है 4 लकड़ी का जो बना हुआ, ये क्या दिख रहा है आपको? 4 लकड़ी का बना, ये तो हो गया शावर हो, वो क्या होगा? वॉशरूम। ड्रेनेज एक्सप्लीट करते थे, किंग और के ऊपर पानी डाला, क्रॉस सेक्शनल पाइप से सीधा एग्जिट बाहर। आज मैं आप ये वाला ये ऐसे पूरा सेम ऐसे ही, इसको रेनोवेट जरूर किया लेकिन जगह ऐसी है। वॉच टावर, जी जनाब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वॉच टावर। यहाँ से दुश्मनों को 24/7 जो सिक्योरिटी होती थी तो वॉच ऑब्जर्व करती थी, ताकि कोई दरिया उनसा पार के वादी नगर में जरा के किंग ऑफ को ख़त्म ना कर दें या किला फतह ना करें। जो आपको सामने राइट साइड पे जो काला सा जो स्टोर जैसा दिख रहा है जगह, उसको कहते थे स्टोर रूम। वहाँ पे ड्राई फ्रूट प्रिजर्व करते थे, खास करके मौसम सरमा में गोश्त को प्रिजर्व करते थे। ये जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ये खान का इबादत का, जब इस्लाम आया यहाँ पे पहली बार करके ये बना। अब मैं आपको हाथ की मदद से कुछ पीक्स के नाम दिखाने बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम बाहर जाएंगे, 10 सेंटीमीटर की जगह देखेंगे, कुछ रूम देखेंगे, हमारा टूर खत्म हो जाएगा। ये देखिए उत्तरवन टू या मुंजा पे, इसके बराबर में ये सामने स्ट्रेट में जो काला पहाड़ है, इसके टॉप पे अनफॉर्चुनेटली बादल नहीं दिखेगा, गूगल पे देख लेना बाद में, एक टिप जैसा दिखता है, खातून की उंगली की टिप जैसा दिखता है पहाड़, जो कहते हैं हम लोग लेडी फिंगर, वो भी पहाड़ है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल टिप जैसा दिखता है, बादलों में गिर गया इस वक्त। सबसे आखिरी में देख एक्सट्रीम लास्ट 90 डिग्री में जो ये काले पहाड़ों के बिल्कुल लास्ट में जो आपको पहाड़ दिख रहा है, बर्फ का सिलसिला लास्ट वाला, उसको राका पोशी बोलते हैं वादी नगर में। ये जो आपको सामने पहाड़ी सिलसिला दिख रहा है, ये वाला बर्फ का जो पहाड़ है, इसको हम लोग कहते हैं दिरान पीक। बेटा इधर आ जाए फॉलो करें मुझे। एक देखें, एक ऐसा पहाड़ ऐसे आ रहा है, काला पहाड़ ऐसे आ रहा है, एक काला पहाड़ ऐसा आ रहा है, बीच में छोटा काला पहाड़ है, इसके जस्ट पीछे एक और पहाड़ है, उसको कहते हैं गोल्डन पीक। इसका ये मतलब नहीं वहाँ से बर्फ छलकता है, बर्फ यानी गोल्ड निकलता है जब सूरज की किरणें पड़ती है, में गिरा, उसको कहते हैं दस्तकील पीक। अब आ जाए, मैं आपको 10 सेंटेंस की जगह दिखाता हूँ, उसके बाद रूम देखेंगे और हमारा टूर एंड हो जाएगा। आ जाए, मुझे फॉलो करें, आ जाए। आप लोग बोले यहाँ खड़े हो सकते हैं, सेफ। ये वो जगह थी जहाँ से वजीरों को नीचे फेंकता था किंग, तरह के वाकई गद्दार है वो, जासूसी कर रहा था किंग के अगेंस्ट खिलाफ, जहाँ से बिल्कुल नीचे। दूसरा उनको जो बता हम सच जान के लोग हैं, जिसे आपको पहले पता 4 दिन खाने पीने के बगैर ही बोलते हम रह सकते हैं 4 जन्म भी, उनको बगैर कोई टाइम के वेस्ट नीचे। तीसरा उनको जो साल में बुलेट बढ़ के ऊपर तो आ जाता था कभी कभार शाह नादिर, लेकिन वो नहीं पता होता था कि जनाब सिक्योरिटी जो एहलकार है 24/7 तैनात है, उनको 2 हाथों से वेलकम करते थे, उन्हीं 2 हाथों से फिर उनको धक्का देके नीचे गिरा देते थे। ये देखिए आप ऊपर, आपको फोर्ट के ऊपर एक बकरा दिख रहा होगा, काला सा दिख रहा है आपको सामने का, सींग रियल है, जिस्म जो इसका वुड से तराश के बनाया, लोकल आर्टिस्ट ने 80-100 साल पहले बनाया। पाकिस्तान कौमी जानवर शाम खाता है, चरागाहों पे, पहाड़ों पे, चाइना, खुजरा बॉर्डर, इस तरह की जगहों पे बहुत रहता है, और सच जान का होता है कि 80-100 साल पुराना जानवर है, मतलब इसका जो स्टेचू है उसको आपको बताया 5 से 6-7 साल जाते बाद डिग्री अटेम्प्ट की, नाकाम रहे, पॉलिटिकली इंटरवीन किया, दिलबस्तान मुंजा में आकर राज किया उन्होंने कुछ साल। जाते समय उन्होंने ये फोटोज लिए थे उसी डेविड ने, उसके नाम पर डेविड लैंड बनी है पाकिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर, और कहते हैं उसकी आखिरी आराम का टांग जो डेरा इस्माइल खान जगह टांग, वहाँ पर उसकी तदफीन खबर वहाँ बनी है। वो जाते हैं तो उसने अपने ब्लैक एंड व्हाइट मैनुअल कैमरे से फोटो देख सकते हैं मुंजा की सिंपलिसिटी। आ जाए जनाब, मैं आपको एक और रूम दिखाता हूँ, सब रूम में खाली फोटो
तो उनको इस तरह के खेत तर्ज पे बनाए। अभी भी चाइना में इसी तरह के तर्ज पे खेतों में कपियाँ, एक के ऊपर एक कपियाँ, चाइना इस तरह काम करता है। सेम उसी चीज़ को फॉलो ट्रेंड करके लोग इधर आए। ये शबरन है पोलो ग्राउंड, यहाँ पे पोलो खेलते थे, चूँकि जब यहाँ पे पब्लिक को 2 प्राइवेट स्कूल 2 बन चुकी हैं, स्कूलें बड़ी, तो कि अभी ये ग्राउंड जो है बहुत उसकी श्रिंक होकर छोटा रह गया, वॉल्यूम हजम साइज में, और ट्रेंड भी नहीं, रोजान भी लोग आज के दूसरे गेम खेलते हैं, इसलिए अब इसके अंदर पोलो नहीं बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग खेलते हैं जोर शोर से जवान लोग। ये देखिए हुंजा का ऊपर से व्यू, ये सस्पेंशन ब्रिज हुसैन, ये ऊपर से हुंजा का व्यू, ये फार्मिंग लैंडिंग एग्रीकल्चर का तरीका, कन्वेंशन ट्रेडिशनल मेथड, एक बुफेलो, एक बंदा पूरे खेत पाल चला रहा है। ये देखिए मर्द और ख़वातीन दोनों मिलकर रशियन ब्रीड की गंदुम है। ये सिंध पंजाब में नहीं, पहाड़ी इलाकों की खाली गंदुम है, पहाड़ों पे इसको फसल देती है। ये वहाँ पे काट रही है, इसकी थ्रेशिंग, सफाई हो रही गंदुम की। ये देखिए ख़वातीन 24 घंटे कितना मेहनत करती थी वहाँ पर, सब जानवरों की जो खाल होती थी ना, उससे बुनना, लिट करना, उससे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बनाना, स्वेटर टाइप के सब बनाती थी। आगे जनाब यहाँ पर मैं आपको और कुछ फोटो दिखा दूँगा। ये देखो लोगों के रेस से लोगों के बल्कि फोर्ट करीबन 300 साल के बनने के बाद फिर 2 भाई में बगावत की। उसी भाई की नस्ल में से जिसने दूसरे को चुनवाया था, 300 साल बाद 2 भाई बोले कि जनाब हमारे को फिर खेला या थ्रोन के ऊपर लड़ना है। इस बार अक्लमंदी दानाई से काम लिया, दिमाग को यूज़ करते, बोला वोट गिराते ना कि खून या बंदा गिराते हैं। शेबोज जीत के अखला खार के 2 भाई थे। शेबोज को बोला क्या चाहते हो, बोला मैंने जगह देखी, वज़ीरों को बताया, आर्किटेक्चर उन्होंने वहाँ से ऑर्डर करके बुलवा लिया, टेलीग्राम देखे तिब्बत से कुछ साल लगे। ये गार्डन, ये देखे चटील पहाड़ियाँ, इसमें देखिए बड़ा यूनिक फोटो है, तलवारें निकली हुई। ये ऐसा कि वार्म अप डांस होता था जंग से पहले, नकारा तबले जंग सायरन बजता था, उसके बाद यहाँ के लोग वार्म अप होने के बाद जाके नगर के साथ लड़ते थे। अब ये सारी दुश्मनियाँ, नफरतें, मोहब्बत, दोस्ती में तब तब्दील हुई जब हमारा हुंजा का एक राजा था और वहाँ नगर की रानी थी, दोनों में शादी हो गई, खत्म कहानी। फिर इसके बाद तलवारें नहीं निकलती दूसरे पे, बल्कि फूल बरसाते हैं। ये कुछ जो नीचे की जो चीज़ें आपको सारी दिख रही है, ये नया पार्ट रिनोवेशन किया है। ये था तो उसी ज़माने में, लेकिन ये नया ड्यूरेंट है, याद पे बैठा हुआ, किसने कमांड किया होगा, समझाओगे इस तरह फोटो लेने के लिए। ये देखिए जड़ी बूटी प्रिजर्व करने का तरीका, ये गंदम फेच करने का, ये रियल फोटो है उनकी रियल फोटो है। तो ये था फोटो। Let's go guys, this was the last part of the Eltid Fort. I really hope you enjoyed, because we enjoyed a lot and we tried our best to capture all of the things and whatever he said, so that you can get a little bit, knowledge about the things and everything. And you can see there are like so many houses, and I was like seeing there were like so many apricots, they were drying out. So yeah, it was like so good. So this is the area, and on the way when we were going, we also captured this. And there was a dry fruit shop, so we thought, why don't we go inside and taste a little bit of dry fruit and also buy some. So yeah, there were like so many dry fruits, and they were like so yummy. They were like all like, what I can say, they were like all tasty and everything. And yeah, and here are some currencies. As you can see, we just filmed it a little bit. So now we are going to go on the next one. So the next point name is the Eagle Nest, and people usually go there for the sky view and for the beautiful scenery of the sky, mountains and the glaciers. So yeah, and there's also a eagle that's naturally made from the stone. So people also go there to see that, and there were like so many cherries, like there were like so many cherry trees, like I really wanted to eat. And there was also the sky gliding, as you can see those little parachutes. So now we have arrived to our Eagle Nest Hotel. As you can see, we are going to park our car, and you have to walk a little bit, and I was like so tired because it was like you have to go right on top. So yeah, and when we went there, they were like actually blasting the place, and the Eagle Nest was like somewhere near us, but we couldn't see it. So we just captured this so for you guys, so that you can know that we went to this place, and this is what it looks like.
So this was it for today's video. Stay tuned with us for more videos because we are going to be exploring Hunza a lot. Thanks for watching. Bye.